In this video, we will discuss the method integration by substitution. So to understand this method, let's say there is an integral given. So let's say there is an integral of f of x with respect to x. Let's say this integral is I. And to solve this integral, we have to use substitution. So we will put g of t in place of x. So जो भी function दिए f of x, in that function we are putting a function of t in place of x. So this function will become function of t. So this I will become integral of f of g of t. यहाँ पर g of t पुट करने पर this function will become function of t. But यहाँ पर we were integrating with respect to x क्योंकि यहाँ पर dx था. But यहाँ पर जो function बना है वो function of t बना है. So we have to transform this dx to dt. And how do we do that? उसके लिए ये जो equation है इसको differentiation करना है with respect to x और t. So derivative of x with respect to t is equals to derivative of g of t with respect to t. So derivative of x with respect to t will be dx by dt and derivative of g of t with respect to t will be d by dt of g of t. And let's say यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने पर मेरे को जो फंक्शन मिलेगा लेट्स से वो फंक्शन है g डैश t. फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड dx. सो यहाँ से dx मिलेगा मेरे को dt इंटू g डैश t. तो यहाँ पे dx मिलेगा मेरे को g डैश t इंटू dt. dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया एंड फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड dx. नाउ वी विल पुट g डैश t इंटू dt इन प्लेस ऑफ dx इन दिस फंक्शन. सो मेरे को क्या मिलेगा? आई विल गेट g डैश t इंटू dt. सो यहाँ पे हम क्या किया? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, मतलब फंक्शन ऑफ x का जगह पे फंक्शन ऑफ t पुट किया एंड जो फंक्शन था, ओरिजिनल जो फंक्शन था वो बन गया फंक्शन ऑफ t. Therefore we have to transform this dx. For that we have differentiate this function with respect to t, जिससे मेरे को dx मिल गया. Then dx का जगह पे पुट करने पर I got this integral. So this method of substitution is very important to solve the given integral. So usually we substitute for the function whose derivative is already in this function. Now let's apply this method in the question. So this is the first question that we will solve using integration by substitution. So to solve this question, we have to substitute. So what we will do, we will put t in place of this 2x. We will put t in place of 2x. So why we are putting t in place of 2x? क्योंकि यहाँ पे t put करने से this will become sin t. And we know integration of sin x. Integration of sin x is minus cos x. उसी तरह integration of sin t will be minus cos t. Therefore, we are putting t in place of 2x. But we have to transform this dx क्योंकि यहाँ पर function of x है और उसका integration with respect to x करना था. But we are now transforming this function in terms of t. So dx को भी transform करना है in terms of dt. So to transform this dx into dt, we have to differentiate this equation with respect to x. So derivative of t with respect to x is equals to derivative of 2x with respect to x. So ये है dt by dx and derivative of 2x with respect to x will be 2. So dt by dx is equals to 2. From here I can find dx. So dx को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा and 2 को डिवाइड कर लेगा. So this will become dt by 2 is equals to dx. So we will put t in place of 2x and dt by 2 in place of dx. And also let's say this integral is I. So I. So I is equals to integration of sin t dt by 2. 2x की जगह t पुट कर लिया and dx की जगह पे dt by 2 पुट कर लिया. ना यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है. So 1/2 को हम बाहर निकाल सकते. So I is equals to 1/2 integration of sin t dt. So we have formula for integration of sin x. Integration of sin x with respect to x is minus cos x. Therefore, integration of sin t with respect to t will be minus cos t. So I is equals to 1/2 minus cos t and plus c.
So I is equals to -1/2 cos t plus c. And what was t? t is basically 2x, क्योंकि जो ओरिजिनल इंटीग्रल था वो फंक्शन ऑफ x था, सो हम लोग का आंसर भी फंक्शन ऑफ x का फॉर्म में लेके आना है. सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t विच इज 2x. सो आई विल गेट i is equals to -1/2 cos 2x plus c. सो ये है फाइनल आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रल. सो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें कुछ पार्ट को t से सब्स्टिट्यूट करना है, देन dx को ट्रांसफॉर्म करना है, एंड उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो भी इक्वेशन ऑफ t रहेगा उसको डिफरेंशिएशन करना है. डिफरेंशिएशन करने के बाद वी विल गेट dx जिसको सब्स्टिट्यूट करना है, एंड उसके बाद फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा t के फॉर्म में, एंड जो dx रहेगा वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा dt का फॉर्म में. देन जो न्यू फंक्शन रहेगा फंक्शन ऑफ t उसको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t. नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल. सो इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड विल पुट t इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. देन उसके बाद dx को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो इक्वेशन ऑफ t रहेगा उसको डिफरेंशिएशन करना है. सो अगर ये t है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा. एंड यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी 2x है, जिसका वजह से सब्स्टिट्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा. सो लेट मी शो यू हाउ. सो वी हैव टू अज्यूम t इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 एंड डेरिवेटिव of t विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी 2x. सो dx को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने पर आई विल गेट dt इक्वल टू 2x dx. सो आइदर आई कैन फाइंड dx डायरेक्टली, या फिर हम dx को मल्टीप्लाई करके 2x dx का जगह dt सब्स्टिट्यूट कर सकता. सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट t इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. सो यहाँ पे t आ जाएगा, साइन t बन जाएगा ये, एंड 2x dx के जगह पे आई विल सब्स्टिट्यूट dt. सो दिस विल बिकम साइन t dt. सो जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बताया था, जो भी फंक्शन दिया रहता उसका कुछ पार्ट को t एज्यूम करना है, एंड उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी फंक्शन में दिया हुआ रहेगा. अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो इन दिस क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 1 को हम t एज्यूम करते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव यहाँ पे 2x है. सो t एज्यूम करने के बाद उसका डेरिवेटिव 2x मिला मेरे को, एंड 2x एंड dx को मल्टीप्लाई करने पर मेरे को मिला 2x dx विच इज इन द फंक्शन. सो नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये बन जाएगा t, एंड 2x dx का जगह पुट करना है dt. सो dt. So I is equals to what is integration of sin t? Integration of sin t with respect to t will be minus cos t plus c. And what is t? T is x square plus 1. So this will become minus cos x square plus 1 plus c. So ये है आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रल. सो लास्ट में क्या करना है? t के जगह वापस पुट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ x. नाउ वी विल सॉल्व वन लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके लिए वी विल पुट t इन प्लेस ऑफ tan रूट x. वी विल अज्यूम tan रूट x एज t, क्योंकि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x? डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, ठीक है? एंड यहाँ पे ऑलरेडी sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर रूट x है. सो यहाँ पे जो tan रूट x है इसको हम t एज्यूम कर लेगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव मेरे को यहाँ पे मिलेगा. So we have to differentiate this equation, derivative t with respect to x ये निकालना है. So यहाँ पे यूज करना है चेन रूल. So derivative of tan x, रूट x को x एज्यूम करना है. Derivative of tan x is sec square x. So sec square x. Then रूट x को x एज्यूम किया था. So रूट x का डेरिवेटिव is 1/2 रूट x, ठीक है? So ये है डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x, जिसको हम लिख सकता sec स्क्वायर रूट x बाई 2 रूट x. ये है dt बाई dx. नाउ यू कैन क्लियरली सी फंक्शन में ऑलरेडी sec स्क्वायर रूट x एंड रूट x है. सो यहाँ पे हम sec स्क्वायर रूट x को एक साथ रखेगा, एंड dx को भी हम ला सकता अगर dx को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा. सो मेरे को मिलेगा sec स्क्वायर रूट x बाई रूट x इंटू dx, ये मेरे को मिल जाएगा. सो हम 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता. सो आई विल गेट 2 dt इक्वल टू sec स्क्वायर रूट x बाई रूट x, एंड dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, सो इंटू dx. सो ये चीज ऑलरेडी फंक्शन में है, sec स्क्वायर रूट x बाई रूट x इंटू dx, ये चीज ऑलरेडी फंक्शन में है, ठीक है? तो हम ये जो पार्ट है इसको हम एग्जैक्टली यहाँ पे लाने ट्राई किया, एंड आई गॉट दैट. सो इसके जगह हम
टू डी टी को सब्स्टिट्यूट कर लेगा। सो ये पूरा टर्म बन जाएगा टू डी टी एंड tan रूट एक्स की जगह t पुट कर लेगा। सो यहाँ पे आएगा t पावर 4। लेट्स से ये है i। सो i विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 4 टू dt। ठीक है, ये पूरा टर्म की जगह dt पुट कर लिया हम एंड tan रूट एक्स की जगह t पुट करना है, तो यहाँ पे हम t पुट कर लिया। ठीक है, पावर 4 रिमेनिंग रहेगा। नाउ यहाँ पे कांस्टेंट है 2 को हम बाहर निकाल सकता। सो दिस विल बिकम 2 इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 4 dt एंड वी नो इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 4, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला है, एंड प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है। सो दिस विल बिकम 2 इंटू t पावर 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 5 प्लस c। ठीक है, ये n है, सो n प्लस 1 इज 5 एंड डिवाइड बाई n प्लस 1 इज 5। सो द फाइनल आंसर इज 2 बाई 5। व्हाट इज t? t इज tan रूट x, tan रूट x पावर 5 प्लस c। सो 2 बाई 5, t की जगह पुट करना है tan रूट x, सो tan रूट x एंड पावर 5 एंड प्लस c। सो ये है फाइनल आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रल। इस इंटीग्रल का ये आंसर है। सो दिस वाज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड and these are some questions based on integration by substitution. In the next video we will solve some more questions based on integration by substitution. So stay tuned for more videos. Thank you for watching this video.